Hi friends, in this session on continuation of VACPR theory, valence shell electron pair repulsion, this is a part 2. लास्ट सेशन हमने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ सिमेट्री और ज्योमेट्री में जो चेंज हो रहा है वो देखा था. आज हम डिस्कशन करने वाले विथ लोन पेयर्स मींस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ. सो molecular geometry or the shape where the central atom does have means it has some lone pairs of electron, and due to this symmetry disrotations takes place. Predicting the shape of this molecule where the central atom has a lone pair is somewhat more difficult. Means it is not easy that much. Means जो last session में था simple ऐसा नहीं है. Even though the lone pair cannot be seen. Most important cheese, lone pair cannot be seen. They are still electrons which repel the bonding pair of electron. What is the conclusion of VACPR theory? LP-LP repulsion is more as compared to this LP-BP, and BP-BP repulsion is really very less. So lone pair के साथ सबसे ज़्यादा repulsion होगा. Second position lone pair का bond pair के साथ, and last and third that is bond pair का bond pair के साथ. For a molecule where the central atom has lone pairs, we can write a general formula also includes the lone pair which is represented by letter E. अगर आपने लास्ट सेशन अच्छे से चेक किया था वहां पे हम A and B ऐसे ही लिखते थे. अब हम स्टार्ट करेंगे A as a central atom, B is an outer atom, and E is a non-bonding pair of electron or lone pair. So A central atom, B outer atom, E lone pairs of electron on central atom. So this is all about your A, B and E. Now we'll start with one by one gradually हम start कर रहे हैं molecular symmetry. Now molecular geometry of trigonal bipyramid, trigonal planar. AB2E, basically it's a band shape. We'll start with AB3 molecule that is trigonal planar and replaced by B atom with one lone pair of electron. Lone pair of electron push the bonding electron away, so the bond angle now changes to this 120 degree. अब देखिए AB2E, तो सर AB3 कैसे हुआ? तो बेसिकली E आपको दिखाई नहीं देगा, बट E बिहेव एज ए आउटर एटम की तरह ही वो बिहेव करेगा. एंड ड्यू टू दिस जो एक्चुअल प्लेनर ट्रायंगुलर जो शेप था वो चेंज हो जाएगा एंड बैंड शेप और एंगुलर शेप हो जाएगा. अगर हम पिक्चोरल डायग्राम डिस्कशन करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. नाउ विल डिस्कस लाइक दिस. देखिए अब ये है आपका AB3 मॉलिक्यूल, A एट द सेंटर, B, B and B. A does not have any non-bonding pair of electron. एक भी lone pairs नहीं है. So outer atom कितने हुए? 2 ही है. Just because one lone pair of electron है, और lone pair of electron कौन सा है? तो देखिए ये आपका lone pair of electron है. तो बेसिकली आपका एटम हुआ AB2, but this is non-bonding pair of electron, that is E. तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया आपका AB2E. where A is a central atom, B and B, B2, and this is non-bonding pair of electron. It's look like this. So original AB3 जैसा लगेगा आपको, but just because of this reason non-bonding pair of electron available over it, जो उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा. ये क्या दिखा रहा है? प्लेनर ट्रायंगुलर. बॉन्ड एंगल कितना है? 120. बट जस्ट बिकॉज दिस इज नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, ड्यू टू दिस ये जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा और ये हो जाएगा बैंड और एंगुलर शेप. ऐसा ही एक और नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट विथ टेट्राहाइड्रल AB4. अब ये AB4 में ये जो ऊपर वाला है ये एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके अंदर दो सब पार्ट है, AB3E एंड AB2E2. दो पार्ट हमें डिस्कशन करने हैं. तो यहाँ पे AB4 इट्स लुक लाइक अ टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज 109. सबसे पहले 3 आउटर एटम में से 1 2 3 ये आउटर एटम बन गए, और ये जो ऊपर का एटम है वो बन गया आपका नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये आपका बन गया ट्रायंगुलर पिरामिडल. बेसिकली इट्स अ पिरामिडल शेप.
ट्राइपॉड शेप का बन गया पिरामिडल शेप। अब इंस्टेड ऑफ दिस वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो दो आउटर इलेक्ट्रॉन और दो बॉन्ड एंड दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा आपका Ab2E2। सो Ab2E2 के लिए ये भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ओनली एंड ओनली दिस टू। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैंड शेप और एंगुलर शेप, जहां पे दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये आपका एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। फाइन, सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ H2O। ये एग्जांपल आपका बन गया H2O, ये एग्जांपल बन गया आपका अमोनिया का, ये एग्जांपल बन गया आपका अमोनिया। सेंट्रल इज NHHH NH3 and this is OHNH H2O। so this is all about your non bonding pair of electron effect। अब अगर आप डिस्कशन ऊपर से पढ़ोगे तो दिस इज रियली वेरी इजी फॉर यू गाइस। देखिए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के अंदर दो पार्ट देखे हमने, AB3E एंड AB3E2। सो AB3E बिहेव्स लाइक AB4, जिसमें से एक B रिप्लेस किससे किया, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल 109.5 से छोटा हो जाएगा। AB2E2 जिसमें AB4 की जगह पे दो B एटम को किसने रिप्लेस किया, दो लोन पेयर्स ने, एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल और श्रिंक हो जाएगा और कम हो जाएगा 109.5 मिनट से। तो धीरे धीरे और सिमेट्री और ज्योमेट्री देखेंगे। ये हमने स्टार्ट किया AB2 एंड AB3 मॉलिक्यूल से, अभी AB4 AB5 मॉलिक्यूल भी बाकी है जो हम पीछे डिस्कशन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट AB2 एंड AB3 ज्योमेट्री। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सिमेट्री आ रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विदाउट लोन पेयर्स होता है। जैसे ही इसके अंदर लोन पेयर्स आ जाएंगे तब मॉलिक्यूल के शेप चेंज हो जाएंगे, बन जाएगा सीसो, आइदर टी शेप और आइदर लीनियर। तीन ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लोन पेयर एक है, यहाँ पे लोन पेयर दो है, यहाँ पे लोन पेयर तीन है। अब देखिए सिमेट्री कौन सा है, अगर हम AB5 मॉलिक्यूल लेते हैं, AB5 लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा एग्जांपल लिया था, PCl5, P एट द सेंटर, Cl Cl Cl, तीन सबसे पहले प्लेन में, तो ये बन गया प्लेनर ट्रायंगुलर। एक Cl अबाउ द प्लेन, दूसरा Cl बिलो द प्लेन। अब इसी जगह पे आउट ऑफ दिस 5B मॉलिक्यूल एक B मॉलिक्यूल की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये शेप चेंज हो जाएगा और बन जाएगा सीसो से। Start with AB5 molecule, B with replace with one lone pair of electron. B atom can be taken from the axial and equatorial. Simple सा example. What actually means by axial? What actually means by equatorial? Equatorial and axial के लिए आप क्या याद रखोगे? Axial means axis से parallel. That is called as axial. And equatorial is perpendicular to this axis. That is called as equatorial position. So axial and equatorial. X से पैरेलल, X से परपेंडिकुलर। सो एक्सियल का मतलब क्या होगा, एक्सियल लोन पेयर इज 90 डिग्री फ्रॉम द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको कि किस हिसाब से ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल होता है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पार्ट। ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल AB5 का, PCl5। सो हियर इन केस PCl5 के अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा था, दिस Cl एंड दिस Cl आर इन प्लेन, दिस Cl इज अबाउ द प्लेन, दिस Cl इज बिलो द प्लेन। अब ये बॉन्ड मीन्स ये Cl की लाइन में ये बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू Cl, दैट इज एंटाइटल्ड एज अ एक्सियल बॉन्ड। वंस अगेन लाइन से पैरेलल उसी के लाइन में आगे बढ़ता है, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, और उससे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल पोजीशन। सो अब देखिए एक्सियल पोजीशंस, लोन पेयर इज 90 डिग्री फ्रॉम द 3 इक्वेटोरियल। 3 इक्वेटोरियल मींस 1 2 3 इक्वेटोरियल हुए, उससे 90 डिग्री पे कौन से होंगे, एक्सियल बॉन्ड्स।
एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहां पे होंगे? लोन पेयर इज 90 डिग्री अवे फ्रॉम टू एक्सियल बॉन्ड इज 120 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो रिमेनिंग 3 आर इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। Once again, equatorial means parallel to this axis and perpendicular to this axis, that is called as axial bond. So let's start with the example. Example से discussion करेंगे और ज्यादा concept clear हो जाएगा. So this is our PCl5. देखिए, this is your P, Cl, 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 that is in plane. This is above the plane. This is below the plane. अब ये PCl5 is nothing but AB5. अब AB5 के अंदर 3 एग्जाम्पल बनेंगे. AB5, B5 में से एक निकालो तो B4, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक और B निकालो, AB3, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक और निकाल दो, AB2 एंड 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हियर इन केस वी हैव टू डिस्कस 3 केस अंडर AB5 मॉलिक्यूल. देखिए, सबसे पहले 4 मींस AB4, 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4E. तो इंस्टेड ऑफ 1B एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जगह ले लेगा. तो शेप क्या हो जाएगा? सीसो. इट्स लुक लाइक अ सीसो. देखिए, ये सीसो की पोजीशंस आ गई और यहां पे आपका एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो ड्यू टू दिस दिस इज बिकम्स सीसो शेप. अब इंस्टेड ऑफ दिस 1 नॉन बॉन्डिंग, अब 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर्मूला क्या बन गया? AB3E2. तो दिस इज AB3 एंड E2 मींस 1 and 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल. दैट इज टी शेप स्ट्रक्चर. टी शेप स्ट्रक्चर आप ज्योमेट्री और सिमेट्री चेंज करके भी दिखा सकते हो. So you can write it down like this also. Here in case also you have 2 non-bonding pair of electron available. This is central element. ये 1, 2, 3 means AB3. ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अनदर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाइकवाइज ऊपर का एग्जांपल ये A, B, 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 B और ये आपका नॉन बॉन्डिंग. दिस इज योर सीसो शेप, दिस इज योर टी शेप. सो बेसिकली AB5 में से एक B नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब लास्ट एग्जांपल डिस्कशन करते हैं जहां पे 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे. देखिए, 2 बॉन्डिंग, 3 नॉन बॉन्डिंग मींस AB2E3. तो दिस इज A, B एंड B. एक ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो बन गया लीनियर शेप. एंगल हो गया 180. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चेंजेस टू सीसो शेप. If 1 non-bonding pair of electron, if 2 non-bonding electron, then T shape, and if it is 3 non-bonding pair of electron, it changes to this linear shape. अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट सिमेट्री और ज्योमेट्री था आपका ऑक्टाहाइड्रल. ऑक्टाहाइड्रल माने AB6 मॉलिक्यूल. सब AB6 मॉलिक्यूल में से एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. तो क्या फॉर्मूला बनेगा? AB5E और वो बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. सो हियर इन केस 1 सेंट्रल एटम, 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 1 जो होगा वो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर होगा. अब ये AB6 में से 2 B निकल जाएंगे और 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो क्या बन जाएगा? AB4E2. सो हियर इन केस सेंट्रल एटम A, B4 means 4 bonded electron और bonded atom and 2 non bonding pair of electron. उसकी सिमेट्री और ज्योमेट्री हो जाएगी एक्सियल, दैट इज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द शेप. AB6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी. अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और उसके अंदर से एक B कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर के अंदर, तो फॉर्मूला बन जाएगा AB5E. एंड AB5E बनेगा तो वो शेप बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. डिसरोटेशन मींस ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल की जगह पे अब बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. उसी की जगह पे 2 B एटम कन्वर्ट हो जाते हैं 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो वो बन जाएगा AB4E2 फॉर्मूला. एंड द स्ट्रक्चर की सिमेट्री बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर. अब दोनों के लिए एक एक एग्जांपल है. 1 इज XeOF4. देखिए, दिस इज द एग्जांपल वेयर Xe डबल बॉन्ड O FFF
ये सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर बन गया, एक्स एट द सेंटर, 4 कॉर्नर पर 4f, तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर की ऊपर की तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ आएगा, डबल बॉन्ड O, तो बन गया स्क्वायर पिरामिडल। तो हियर इन केस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। सो हियर इन केस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। देखिए अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, यहाँ पे x डबल बॉन्ड O के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है Xe, तो यहाँ पे एक ही नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। अब यही चीज आपको यहाँ पे AB के फॉर्म में बताइए। देखिए अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, देयर इज अ लोन पेयर। देखिए यही चेंज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। और इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट डबल बॉन्ड के O के नीचे की तरफ आपका आ रहा है लोन पेयर। सेम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कशन किया, Xe डबल बॉन्ड O और नीचे आपका आ गया लोन पेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्टाहेड्रल चेंजेस टू वन इज स्क्वायर पिरामिडल, अनदर इज स्क्वायर प्लेनर। सो ये पूरा का पूरा पार्ट VSEPR का हो गया नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रीवियस सेशन जो था वो सारा का सारा बॉन्डेड एटम के साथ था, दैट इज नो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी सेशन में हमने एक चार्ट देखा था, वो चार्ट अब फिर से एक बार देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विदाउट E वाले सारे के सारे स्ट्रक्चर देखे थे। नाउ वी गो फॉर अ E वाले टर्म। सो जो लास्ट सेशन में हमने देखे थे विदाउट E वाले, अब आज हमने स्टार्ट किया AB3E सबसे पहले। सो AB3E बेसिकली क्या होगा? AB4, 4 में से एक कन्वर्ट हो गया नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर में। सो ये 3 आ गए B। तो ओरिजिनली क्या था? AB4 माने टेट्राहेड्रल, उसमें से चेंज क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जांपल इज अमोनिया। इंस्टेड ऑफ 1E अब 2E आ गए। सो AB4 में से 2 बॉन्डेड, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टेट्राहेड्रल शेप चेंज हो गया, बेंट और एंगुलर। बेस्ट एग्जांपल इज H2O। नेक्स्ट AB5 के नीचे देखो, AB5 के अंदर एक एक चेंज होता जा रहा है। B में से एक कट हुआ AB4E, एक और कट हुआ AB3E2, एक और कट हुआ AB2E3। अभी रिसेंटली हमने देखा 4 बॉन्डेड 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज CSO। एग्जांपल इज SF4। अनदर AB3E2, 5 में से 3 बॉन्डिंग 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप चेंज हो गया T शेप। एग्जांपल इज ClF3। एंड लास्ट AB2E3, 5 बॉन्डेड में से 2 बॉन्डेड एंड 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यू कैन से दैट लीनियर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ओरिजिनल था AB5 का, अब ये बन गया लीनियर। एग्जांपल इज XeF2। लास्ट अभी हमने देखा ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्डेड में से एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 5 बॉन्डेड, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओरिजिनल सिमेट्री और ज्योमेट्री था ऑक्टाहेड्रल, उसमें से चेंज होके क्या बन गया है? स्क्वायर पिरामिडल, BrF5। एंड AB4E2, उसमें से 4 बॉन्डेड, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर बन गया XeF4। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑन कंक्लूडिंग, आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा सेम टेबल मिलने वाला है। सो दैट इज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4.8 शायद होगा। आप देखोगे तो ऐसा आपको एक पूरा का पूरा टेबल बनेगा। ये टेक्स्ट बुक की ही मैंने प्रिंट आउट निकाली हुई है। सो यहाँ पे AB2E4 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर इज बैंड। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो समझ लीजिए। आपको SO2 बरोबर है, तो SO2 के अंदर AB3 टाइप हुआ, ये बेसिकली AB2N1E, तो बेसिकली AB3 हुआ। तो AB3 का शेप क्या होना चाहिए? प्लेनर ट्रायंगुलर, बट ये प्लेनर ट्रायंगुलर नहीं है एंड बैंड शेप है। वाई? तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, SO2 इज बैंड एंड नॉट प्लेनर ट्रायंगुलर, वाई? तो उसका रीजन यहां पे दिया हुआ है, ये रहा आपका रीजन। फर्स्ट रीजन पढ़ रहा हूं, बाकी सारी चीज आप पढ़ लीजिएगा। थियोरेटिकली द शेप शुड हैव अ ट्रायंगुलर प्लेनर, बट एक्चुअली इट इज फाउंड टू बी द बैंड और V शेप।
The reason being the lone pair bond pair repulsion is much more as compared to this bond pair repulsion. So the angle changes from 120 degree to 119.5 and due to this it's a band shape. Likewise ये हो गया AB4. जो अगर AB4 है तो वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट अमोनिया तो पिरामिडल है, तो ये क्यों हुआ उसका जस्टिफिकेशन सेम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक की जगह पे दो लोन पेयर आ जाएंगे तो H2O का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है बट बैंड है, क्यों, तो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। मीन्स ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो आपको अच्छे से लर्न बाय हार्ट करके प्रिपेयर करना है, जस्ट बिकॉज स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे लास्ट जो दो है वो लास्ट दो इज इंपॉर्टेंट, AB4E एंड AB3E2। हियर इन केस AB5 है तो AB5 का क्या होना चाहिए, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप चेंज हो गया, सीसो हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे वही AB3E2 मीन्स ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो गया बट होना चाहिए टी शेप आ गया। तो ये रीजन क्यों है, जस्ट बिकॉज 3 बॉन्डेड एंड 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेप चेंज फ्रॉम ट्रायगोनल बाय पिरामिडल टू टी शेप। यहाँ पे 4 बॉन्डेड एंड 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए शेप चेंज हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल से सीसो। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे सेशन। ये पूरा का पूरा टेबल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। यहाँ पे VSEPR थियरी कंप्लीट खत्म हो गई। प्रीवियस सेशन इज पार्ट 1 फॉर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दिस सेशन इज ऑल अबाउट नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।